آج نہیں بلکہ 2 دن پہلے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ فیملی یو کے میں کورٹ میں جا رہی ہے. عمران خان کے بیٹے سلیمان اور قاسم یونائٹڈ کنگڈم میں کیس کریں گے، اور ایک کیس ہمارا فائل ہونے جا رہا ہے ڈونلڈ لو کے خلاف امریکہ کے اندر. یہ کیس سزائے موت عمران خان کے اوپر نہیں ہو رہی، یہ عوام کے اوپر ہو رہی ہے. تب سے حکومت گری ہے، سب سے زیادہ بڑی سزا تو پاکستان کے لوگوں نے اٹھائی ہے. آج کورٹ میں کل آپ کافی دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو بہت ضروری چیز تھی کہ آپ لوگوں کی ایکسیس ہو کورٹ کے اندر، اور آپ کا ہونا اس لیے ضروری تھا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہاں سماعت کس قسم کی ہو رہی ہیں. ہم بڑے دنوں سے، آپ کو پتہ ہے کئی مہینوں سے لوگ ہمیں کہہ رہے تھے، دنیا سے لوگ ہمیں فون کر کے کہتے تھے کہ آپ یہ کیس انٹرنیشنل کورٹس میں لے کر جائیں. بڑے لوگوں نے پریشرائز کیا. انہوں نے کہا جیسے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا تھا، کل اعتزاز احسن بھی آئے ہوئے تھے جیل میں، اور یہی بات ہو رہی تھی ذوالفقار علی بھٹو کی کہ بڑے مہینے کسی کو خیال تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھائی جائے گی. اور کہتے ہیں کیونکہ ہمیں سب کو یقین تھا کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھائیں گے، اس لیے کسی کی تیاری نہیں تھی اور سب بڑے شوق میں تھے کہ کیوں ان کو پھانسی چڑھایا گیا. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج عمران خان کو بھی اسی راستے پہ لے کے جایا جا رہا ہے. جو رانا ثناء اللہ نے کیس کیا تھا عمران خان کے اوپر، اس کی دفعات پھانسی کی ہیں، عمر قید یا پھانسی. لیکن عمران خان کی جس تیزی سے یہ کیس کیا جا رہا ہے اور آپ لوگوں کو ایکسیس نہیں دی جا رہی، آپ میں سے کئی آئے ہیں کورٹ میں آ کے بیٹھے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ اتنا بڑا شیشہ لگا دیا ہے تاکہ آپ کو سماعت کی بھی آواز نہ آئے. اور اگر آپ سماعت سن لیں تو یقین کریں اس سے بڑا مذاق انصاف کا نہیں ہو سکتا. اور آج نہیں بلکہ 2 دن پہلے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ فیملی یو کے میں کورٹ میں جا رہی ہے. عمران خان کے بیٹے سلیمان اور قاسم یونائٹڈ کنگڈم میں کیس کریں گے، اور ایک کیس ہمارا فائل ہونے جا رہا ہے ڈونلڈ لو کے خلاف امریکہ کے اندر. اور یہ اس کے اوپر لائرز کام کرنا شروع کر دیے انہوں نے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سائفر کیس ہے اس کا جو اب خان صاحب تو آپ کو پتہ ہے 1000 دفعہ بتا چکے ہیں کہ یہ ڈونلڈ لو نے ایک پیغام بھیجا تھا باجوہ کے لیے، اور یہ کیس جو ہے یہ عمران خان کے اوپر نہیں ہے، یہ پاکستانی عوام کے اوپر ہے. انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے یہ جو کیس ہے یہ پاکستانی عوام کے اوپر ہے، کیونکہ یہ پیغام جو ڈونلڈ لو نے جنرل باجوہ کے لیے بھیجا تھا کہ حکومت گرا دو، یہ عوام کی چنی ہوئی حکومت تھی جس کو جنرل باجوہ نے گرایا تھا. اور اس کا مطلب ہے کہ یہ جو عوام ہے، یہ کیس سزائے موت عمران خان کے اوپر نہیں ہو رہی، یہ عوام کے اوپر ہو رہی ہے. تب سے حکومت گری ہے، سب سے زیادہ بڑی سزا تو پاکستان کے لوگوں نے اٹھائی ہے کیونکہ معیشت کی تباہی ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب سزا تو پاکستان کو مل چکی ہے، پاکستانی لوگوں کو. یہ جو یو کے کا کیس ہے، یہ سلیمان قاسم اور ان کی عمران خان کی فیملی اس کو بیک کریں گے، اور یہ بڑا سیریس کیس ہوگا. اس کا آپ کلیئر ہو جائیں. اب مجھے افسوس ہے کہ ہمیں یہ کرنا پڑ رہا ہے. ہم نے آخری مومنٹ تک، آخری وقت تک یہ امید رکھی تھی کہ یہ ہمیں نہ کرنا پڑے. ہم تھوڑی سی بھی امید رکھ لیتے نا اپنی عدلیہ میں. لوگ ہمیں کہتے تھے، میں آپ کے سامنے بھی کئی دفعہ کہا ہے، ہم پھر بھی اوپر امید تھے کہ ہمارے جو ججز ہیں انشاءاللہ یہ جو ان کے اوپر پریشر ہے یہ سہ جائیں گے اور یہ ایسا کام نہیں کریں گے جو بذات خود ایک جرم ہوگا. میرا خیال ہے کہ جو اگر اس قسم کے فیصلے یہ جس جلدی میں سنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کل فرد جرم عائد ہی نہیں ہوئی تھی. ہم ابھی وہ جج صاحب لکھ نہیں رہے تو آپ ٹی وی پہ چلا رہے تھے. کیسے آ گئی آپ کے پاس ٹی وی پہ؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ساری اسکرپٹ لکھی گئی ہے اور یہ آپ کو ٹی وی پہ پہلے آپ کے پاس پہنچ جاتی ہے. ہم یہاں جیل کے اندر بیٹھے تھے، کورٹ سے تو جج سے تو ہمارے پاس نہیں آئی تھی. جج تو وہ کہہ رہے تھے اندر لکھ رہے ہیں. تو یہ 2 کیسز کا میں نے آپ کو بتانا تھا. اب انشاءاللہ ہم انٹرنیشنل جا رہے ہیں. ہم عمران خان کو سزائے موت تک پہنچانے کی جو
है ना, फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचने देंगे। हम इसके लिए खड़े होंगे इंशाल्लाह। हम इंटरनेशनल भी जाएंगे और कुछ नहीं होगा तो हम इंशाल्लाह हर कोशिश करेंगे जो कानून के अंदर होगी कि उनको यहाँ से रिहा करवाया जाए। कोई सवाल है आपके पास? तो मैडम आपके वकीलों ने ये बात बतलाई होगी क्या खाली इमरान खान के ऊपर केस तब होता अगर सिर्फ इसमें जनरल बाजवा इन्वॉल्व होते। इसमें जनरल बाजवा, हुसैन हक्कानी जिसको उन्होंने हायर किया था, और फिर डोनाल्ड लू ने जो जनरल बाजवा को कहा था। अब अगर हमें छुपाया जा रहा है, अंदर कहते हैं सारा कुछ सीक्रेट है, सारी दुनिया को पता है, अंदर हमें कहते हैं सीक्रेट है, और सीक्रेट रख के उसके ऊपर खान साहब को सजाए मौत सुना देंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये ह्यूमन राइट्स का केस है, ये इंसानी हकूक़ का केस है। अब मैडम आप आलमी अदालतों की जानिब जा रहे हैं तो क्यों नहीं आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं कि वहाँ से आपको रिलीफ मिले और आसानियाँ हो आपके लिए? देखें, ये हमारे लॉयर्स यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं। सारे लॉयर्स सारा दिन कभी एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में भाग रहे हैं, लेकिन हमें भी तो नज़र अब आना शुरू हो गया है कि यहाँ पे कई महीने इसी तरह चक्कर लगवाते रहेंगे और हमने देख लिया है। अब आप ये समझ लें अगर कोई हमारे जैसे लोग जो कभी इंटरनेशनल जाना ना चाहें, अगर हमने वहाँ का रुख कर लिया है तो कुछ तो हमें अब नज़र आ रहा है कि कोई बहुत तेज़ी और बड़ी जल्दी है खान साहब के ऊपर उनको सज़ा देने के लिए। खान साहब को आपने एतमाद में लिया है क्या? उनकी मर्जी इसमें शामिल है कि आप लोग यूके भी जाएं, अमेरिका भी जाएं? हमने खान साहब को पता है, उन्होंने बिल्कुल इस पे अब इत्तेफाक कर लिया है कि हाँ बिल्कुल यूके में भी करें और यूएसए में भी करें। और ये डेट भी बता दें कब तक? इस पर अगर लॉयर्स काम करना शुरू कर दिया इन्होंने इसके ऊपर, और इंशाल्लाह जल्द हम फाइल करेंगे। टाइम बहुत थोड़ा है। जिस स्पीड पे हमारे लोग यहाँ काम कर रहे हैं वो इंसाफ के लिए नहीं यहाँ काम हो रहा, और अब मैं बड़ी मायूस होकर हम ये बात कर रहे हैं, और बड़ी मजबूरी थी जिसके तहत हमें ये फैसला करना पड़ा है। मैम, क्या ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है एज पर यहाँ पर जो प्रोसीडिंग्स होती है उनको देखते हुए कि खान साहब को ये फांसी देना चाहते हैं, या फिर आपके वकीला ने इस हवाले से आपको अवेयर किया है कि इस तरह का कोई ये माइंड सेट रखते हैं? आप मुझे बताएं, ये दफा जो राना सनाउल्लाह ने लगाई हैं जो अप्लाई भी नहीं करती हैं इसके ऊपर, ये केस बन ही नहीं सकता। अगर वो चला सकते हैं जो बन ही नहीं रहा, कोई जज जिसके सामने ये केस जाता मजाक है। आपको क्यों बाहर रखा जा रहा है? आपने एक दिन भी नहीं आके सुना ठीक से कि क्या हो रहा है, क्यों बाहर रखा जा रहा है? क्योंकि एक दफ़ा आप सुन लेना तो आप भी हंसते हुए बाहर निकलेंगे। यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा अंदर। ये किसी को हम बड़े भी देखिए, फिर भी हम बड़ी मैं ये सोच रहे थे कि क्या पता ये थोड़ी सी बेहतरी की तरफ, पता नहीं, उम्मीद तो इंसान सारे रखते हैं। इंसान अपने जुडिशल सिस्टम की इंसल्ट भी नहीं करना चाहता। अब बाहर जाते हैं, लोग कहते थे बाहर जाएं, हमें बुरा लगता था कि हमारे अपनी जुडिशल सिस्टम की ये बहुत बड़ी तौहीन है, लेकिन क्या करें, अगर वो इतने मजबूर हैं तो फिर हम भी अब मजबूर हो गए हैं। अच्छा मैडम, ये बता दीजिए, खान साहब कहते रहे हैं कि ज़ाहिर है अमेरिकन गुलामी की बात होती रही है, अब अमेरिका में ही उन्हीं की वो इंसाफ लेने जा रहे हैं, कैसे? इसके अंदर गुलामी कौन सी बात है? इसके अंदर एक सेकंड, डोनाल्ड लू जिसने यहाँ पैगाम भेजा था कि इनकी हुकूमत गिरा दो, वो गुलामी है? या अगर आप अपना जस्टिस सिस्टम आपको इंसाफ ना दे सके तो आपको आलमी जगह पे जाकर जस्टिस मांगना, या वो गुलामी है? हम तो उनके पास जा रहे हैं कि आपके लोगों ने जो किया है उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। मैडम ये बताइएगा कि आप से एक चीज़ जो हमारी समझ में आ रही है कि आपको पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम जो है उस पर एतमाद नहीं है, आपको इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। अगर आपको है तो आप मुझे बता दें, हम फिर चले जाएंगे उस कोर्ट में। आप जिसका आप कहेंगे हम उधर चले जाएंगे। हमें तो आपने कहा कि तख्तादार तक इमरान खान को नहीं पहुंचने देंगे, इससे ये बात ऐसे आपकी झलक लगी है कि शायद आपको लगता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो टाइप का केस आगे बढ़ रहा है, और अब तक तो यही तासुर था कि इमरान खान को इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर करने के लिए ये सब किया जा रहा है, लेकिन अब आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि ये इलेक्शन से बाहर करने की गेम नहीं है, इमरान खान को जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस का टू किया जा रहा है। बिल्कुल यही हम कह रहे हैं, हम आपको यही कह रहे हैं। आप ये समझ लें कि जो ये दफ़ात हैं, पहले कोई सज़ाए मौत की दफ़ात लगाने का ये केस बनता है। आप लोग इसके लिए कोई लॉयर होने की ज़रूरत नहीं, आप ज़रा इसको ज़रा केस खोल के देख लें। मेरे ख्याल में आप सारे समझदार लोग हैं,
हमारे से ज़्यादा समझदार हैं, आपको भी नज़र आ जाएगा इसमें कुछ नहीं है केस में। खैर यहाँ तो हमारे लॉयर्स कर रहे हैं और वो चलते रहेंगे। हम तो अपनी बात कर रहे हैं फैमिली की कि हम किधर हम इसको कहाँ लेकर जा रहे हैं। हम वहीं उनको चैलेंज करेंगे जिनकी वजह से, जिनको बचाने के लिए हो रहा है। मैं अफसोस ही कह रही हूँ ना, मायूसी में और अफसोस से कह रहे हैं। हम बिल्कुल अपनी अदालती निज़ाम की वो एक किस्म की इंसल्ट ही है अगर आप कहें कि जी बाहर जाना पड़ रहा है। अगर हमें मजबूरी है तो हम बाहर जा रहे हैं। आप लोगों को मोबिलाइज क्यों नहीं करते? क्योंकि पाकिस्तान में अगर हमने रूल ऑफ लॉ कायम करना है तो अगर इमरान खान हूँ या XYZ जो भी हूँ, पाकिस्तान के अवाम का ये हक है कि वो इस रूल ऑफ लॉ के लिए बाहर निकले। तो आप इंटरनेशनली जाने की बजाय पाकिस्तान की अवाम की कोर्ट में क्यों नहीं जाते? देखिए, पाकिस्तानी अवाम बाशऊर हैं और लोगों को निकलना चाहिए अपनी ज़मीर की आवाज़ पे, क्योंकि ये लॉ सिर्फ इमरान खान पे तो नहीं होगा। कल आप लोग जब जाएंगे अदालतों में, आपको इंसाफ की तवक्को आपको भी नहीं मिलेगी। तो आप अपने निज़ाम के लिए बाहर निकलें। हम अपने भाई के लिए जाएंगे, आप अपने निज़ाम के लिए ख़ुद निकलें। सिर्फ इमरान खान तो नहीं अफेक्ट हो रहा ना, आप सारों के साथ क्या होगा कल जब आप अदालत में जाएंगे? आपको उम्मीद है इंसाफ की? अगर इमरान खान के साथ पब्लिकली ये तमाशा हो सकता है तो कल आपके साथ क्या होगा? तो लोगों को ख़ुद करना चाहिए, अपने खुद ये सोच के निकलना चाहिए कि आप अपने निज़ाम को ख़ुद बचाएं। आप कह रहे हैं कि मैं कॉल दूं, हम तो अपने भाई के लिए खड़े हैं, हम उसके लिए तो पहले कर लेना। अमेरिका ने भी कहा कि ये जो डोनाल्ड लू वाला या साइफर वाला है, ये तो खुद पाकिस्तान में ये पूरा मामला मैनिपुलेट किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो क्या आप क्या कह रहे हैं कि ये तो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने वाज़ेह तौर के ऊपर कहा है कि ये पाकिस्तान में चीज़ मैनिपुलेट की गई है, डोनाल्ड लू ने या अमेरिका ने ना ही हुकूमत गिराई ना ही कोई ऐसा तो थ्रेट किया था। फिर अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट बता दे कि डोनाल्ड लू ने एक मीटिंग में क्या पैगाम दिया था बाजवा साहब के लिए, क्या पैगाम दिया था? आप बताएं, आप सबको पता है क्या पैगाम दिया तो साइफर नहीं पढ़ा और खान साहब के ऊपर सारे इल्जाम पाकिस्तान भी को है कि देखें। साइफर को आप मैनिपुलेट वो एक इनका वो बाहर का ही जर्नल है, उसको इंटरसेप्ट, उसके अंदर सारा आया हुआ है। उन्होंने कहा था हुकूमत गिरा दो, खान साहब 10 दफ़ा बता चुके हैं, सारे पाकिस्तान बता चुके हैं। सारी ये सीक्रेट क्यों है पहले ये बताएं। एक आदमी कह रहे हैं कि हुकूमत गिरा दो, इसके अंदर सीक्रेसी होनी क्यों चाहिए? इंटरसेप्ट को कैसे मिल गया? वो साइफर जो खान साहब के पास था या शाह महमूद कुरैशी के पास था, वो इंटरसेप्ट ये इनके पास साइफर नहीं था। साइफर होता क्या? पहले आपको किसी को पता है साइफर क्या? कागज़ है, एक पैगाम है जो मीटिंग के अंदर जो मिनट्स होते हैं ना, एक मीटिंग होती है, आपको पता है ना मिनट्स होते हैं, हाँ, उसके अंदर जो मिनट्स होते हैं, ये वो मिनट्स थे। मिनट्स की जो रिकॉर्ड है वो उठाकर उन्होंने पाकिस्तान भेजा, जो कि प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जाना चाहिए। ये सिर्फ उसने कहा सिर्फ जाना चाहिए बाजवा साहब को। ये डोनाल्ड ल्यूक ने अगर गलती की है, उसको ऐसे हुकूमत का गिरवाने के लिए मैसेज नहीं भेजना चाहिए था। ये इसलिए हमें उसको पूछना चाहिए। स्टेट डिपार्टमेंट क्यों कहेगी कि उन्होंने सही किया? खान साहब ने खुद कहा कि जो जलसे में मैंने कागज लहराया था वो साइफर नहीं था। नहीं, एक सेकंड, आप इसको छोड़ दें। आप इसको कहाँ लेकर जा रहे हैं? पहले बताएं कि पैगाम था क्या? आपको पता होना चाहिए कि वो पैगाम भी नहीं पढ़ा होगा। डिबेट क्यों कर रहे हैं? आप ठहरें, नहीं, आप ऐसे ही मेरे ख्याल में टाइम ज़ाया करने के लिए। अच्छा, अब ठहरें।